Now, let's start session number 2. The name of the session number 2 is Demonstrate the knowledge of distinguishing characteristics of entrepreneurship. Means a person who want to start his own business, what are the different characteristics of that person? First thing, what they are saying that what do you mean by entrepreneur? What do you mean by the entrepreneurship? And what do you mean by enterprise? First thing they are saying that entrepreneur is the person who wants to start his own business. Clear? Entrepreneur is one who entrepreneur is the person who wants to start his own business. That is called entrepreneur. And for start a business, what process he or she follow, that is called entrepreneurship. Means the process that the persons follow to start a business, that is called entrepreneurship. And next, the outcome that comes from the effort of entrepreneur, that is called enterprise. Clear? Before start this unit, we must know about what do you mean by entrepreneur, what do you mean by entrepreneurship, and what do you mean by enterprise. Entrepreneur means the person who wants to start business, and entrepreneurship, the process that he or she follow to run a business, and enterprise is what? The outcome from the business. Now, next point is here, characteristics of entrepreneurship. Means what if we do a business, then in process, what are the characteristics of that process? We know that now entrepreneurship means what? The process of to do a business. First, they are saying that these are the characteristics of entrepreneurships are as follow. First point is here, पर्पसफुल एक्टिविटी. अगर बेटा एंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी करता है, जो हमारा गोल सेट होता है, हमारी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए कि हमें इस टाइम पे इतना गोल अचीव करना है, इस टाइम पे हमें इतना गोल अचीव करना है. हमारी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिव एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ भी हर बार नया प्रोड्यूस करना चाहिए. हमें ऐसा नहीं है कि एक ही चीज बना रहे हैं और हर बार हम सेम चीज पे काम करते रहे. हमें हर बार कुछ ना कुछ नया बनाने की सोचना चाहिए. क्रिएटिव होनी चाहिए हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है. रिस्क बियरिंग एक्टिविटी. रिस्क बियरिंग बेटा जैसे सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वी ऑल नो दैट इन बिजनेस रिस्क आर देयर. मींस maybe our business flourish or it may be our business not flourish. So be ready for the risk. Organize. There must be good organizations or like capital related and organize the enterprise and then entrepreneur and their organization. Proper organization should be there. किस किस को organize करना बेटा? अपने रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है, वेल मैनर में रखना है, फिर अपने फाइनेंस को वेल मैनेज करना है, प्लस अपने लेबर्स जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर मैनेज करना है. Next is here gap filling. An entrepreneur identifies and fill the gap between the society needs and what available. मीन्स बेटा गैप फिलिंग का मीन्स क्या होता है? कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या करता है, उस सोसाइटी के जो भी पर्सन है उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, डिजाइन करता है. डायनामिक प्रोसेस क्यों करते हैं बेटा इसको एंटरप्रेन्योरशिप को? क्योंकि बच्चे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. जैसे रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज होना पड़ता है. इनिशिएटिव टेकिंग. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स इनिशिएटिव्स क्या होते हैं बेटा? क्विक डिसीजन लेना या सबसे पहले स्टार्ट करना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव. मल्टी डायमेंशनल. जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है बेटा वो मल्टीपल डायमेंशन है. कैसे? इकोनॉमिक्स, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. सोशल, रिलेटेड टू सोसाइटी. साइकोलॉजिकल कल्चर, जो भी उस एरिया के पर्सन है उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका क्या कल्चरल डिपेंड वो है. नेक्स्ट इज हियर रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर. जो बेटा इंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या रोल है? 4 टाइप्स के रोल्स होते हैं बेटा उसके. एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस एंड कमर्शियल फंक्शंस.
फर्स्ट इज हेयर एंटरप्रेन्योरियल, कि वो अगर एज अ एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क करता है, तो उसके क्या क्या फंक्शन है। इनोवेशन, उसको कुछ भी नया बनाना आना चाहिए। बेटा एक ही तरह की चीज बेचते रहोगे, सपोज आपने सोफे का बिजनेस स्टार्ट किया, अब बार बार सेम तरह के सोफा बनाते रहोगे और सेल करते रहोगे, कितना टाइम चलेगा। जबकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने बड़े अच्छे अच्छे न्यू न्यू लेटेस्ट डिजाइन के सोफाज डिजाइन कर दिए, तो आपका बिजनेस तो ऑब्सोलीट हो जाएगा। सो इनोवेशंस होनी चाहिए आपके बिजनेस में। जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें कुछ भी नई चीज लाने की कोशिश करो, क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करो। एंटरप्रेन्योर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा? रिस्क टेकिंग। सबको पता है अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई 100% गारंटी नहीं होती कि आपको प्रॉफिट देगा बिजनेस। सम टाइम इट गिव प्रॉफिट, सम टाइम इट गिव लॉस, सो बी रेडी फॉर रिस्क टेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग मीन्स प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करना, जिसमें रॉ मटेरियल्स एज वेल एज आपके फिनेंस, आपकी सारी चीजें प्रॉपर एलोकेट होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज हेयर प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शंस में क्या होता है बेटा? कोई भी नए नए आइडियाज को डिस्कवर करना, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी चीज के बारे में, असेंबलिंग करना रिसोर्सेज की, कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मुझे मैकेनिक मिलेंगे, कहाँ से मुझे मशीनरी मिलेगी। फिनेंसिंग द प्रपोर्शन, और मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट करो बेटा अपने फिनेंस के प्रपोर्शन में करो। पता लगे आपके पास है तो टोटल 50 लाख रुपीज, और आप सोच रहे हो कि मैं 2 करोड़ की मशीन खरीद लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपका फाइनेंस और आपका बिजनेस उसको प्रपोर्शन में करो। ऐसा नहीं करो कि आप इतना सारा लोन लेके अपनी मशीनरी लगा रहे हो और कल को आपका बिजनेस 1% मान लो अगर नहीं चलता है, तो आपको उस चीज में लॉस हो। नेक्स्ट वन इज हेयर मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल में क्या होता है बेटा? मैनेजरियल में आते हैं 6 पॉइंट आ जाते हैं। प्रॉपर प्लान करो अपने बिजनेस का, उसके बाद ऑर्गेनाइज करो जो भी आपने प्लान किया है, फिर उसके बाद स्टाफिंग, वर्कर्स को हायर करो, वर्कर्स को डायरेक्टिंग, उन्हें बताओ कि उन्हें काम कैसे करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड करो। आफ्टर दैट कंट्रोलिंग, कंट्रोल करो सारे वर्कर्स को कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वापस उन्हें इंस्ट्रक्शंस दो, डायरेक्शंस दो। एंड देन कोऑर्डिनेशन मींस एक हेल्दी रिलेशनशिप रखो अपने वर्कर्स के साथ, जिससे क्या होगा बेटा? आपके वर्कर्स मोटिवेट होके अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर कमर्शियल फंक्शंस। कमर्शियल फंक्शंस क्या होता है बेटा? दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो, मार्केटिंग, कहाँ आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कितना आपको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। accounting, that is related to your finance related, and finance. Now let's do these points. Now in your book also they are saying innovation, risk taking, organization building. These are the part of your entrepreneurial role. And in promotion of idea, detailed investigation, assembling the requirements, and financing the plan. नेक्स्ट वन इज हेयर मैनेजरियल। मैनेजरियल में हम सबको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। दीज आर द 6 पार्ट ऑफ मैनेजरियल। नाउ कम टू द कमर्शियल रोल्स। कमर्शियल रोल्स में क्या होता है बच्चा? फर्स्ट इज हेयर प्रोडक्शन। Production means that we all of know that creating goods and services. Production is the key functions as it is provides goods and services for selling. मार्केटिंग क्या होता है बेटा? मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ऑफरिंग प्रोडक्ट्स, मींस आप कहाँ जाके अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हो और कहाँ जाके आप अपने कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। पर्सनल में क्या है बच्चे? The personal functions involve employment, development of compensation of the employee. Personal में क्या आ जाता है बेटा? कि आप किसी को एम्प्लॉय दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, कि आप किसी को काम दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर accounting. It involves systematic recording of the enterprise transactions, कि आपने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा है, कितने की आपने सेल की है, कितने आपके मशीनरी पे पैसे लगे हैं। अकाउंटिंग में हर एक चीज का रिटर्न डेटा सेव होता है, हर एक ट्रांजेक्शन्स का। नेक्स्ट वन इज हियर फाइनेंस। ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिवॉल्व अराउंड द फाइनेंस। बेटा बिजनेस स्टार्ट करते क्यों है? ताकि आप फिनेंस अर्न कर सके, मनी आपके पास आए। सो दिस इज कॉल्ड फिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर
रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. रिवार्ड को बेटा, रिवार्ड मीन्स क्या क्या बेनिफिट होते हैं अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो. फर्स्ट पॉइंट इज हियर इंडिपेंडेंस. बेटा अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. आपको जो भी डिसीजन है आप अपने खुद से ले सकते हो. किसी को फॉलो नहीं करना है कि हाँ हमें कोई गाइडलाइंस देगा और फिर हम काम करेंगे. आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी है, जैसे मन करे आप कर सकते हो. एम्बिशन फुलफिलमेंट. अपने बिजनेस में बेटा अपने एम्बिशंस फुलफिल हो जाते हैं, जो भी अपने आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, we can apply all this into our business. They are also saying the same thing. Some people wants to convert their original idea into new products or services. For example, smartphone, electric vehicle, driverless car, driverless train. These are the ambition fulfillment. Means अपना बिजनेस है बच्चे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं. Excitement, entrepreneurship involves adventure. Some people resign their well-paid jobs and launch their own venture due to excitement. Next is here, freedom. Entrepreneurship allows the freedom to try out one's idea. Freedom seeking people choose entrepreneurship as a career. Freedom होती है बेटा अपने बिजनेस में जो मन करे जैसे मन करे हम अपने में काम कर सकते हैं. Wealth creation. अगर हमारा बिजनेस सही चल रहा है तो वेल्थ तो क्रिएशन होनी है, फिनेंस तो हमारे पास आने ही आना है. नेक्स्ट इज हियर स्टेटस. अगर बच्चे अच्छा बिजनेस चलता है तो सोसाइटी में भी उसकी फेम होती है, नाम होता है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपको वेल्थ स्टेटस मिल देता है बिजनेस. नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर सेशन नंबर 2. एंड एंटरप्रेन्योर इज अ, हु इज द एंटरप्रेन्योर, हु इज इनोवेटर. इनोवेटर होता है रिस्क टेकर या बोथ ऑफ दिस. Here correct answer is both of these because both of these are the characteristics of entrepreneur, innovator and risk taker. Next one is here, the process of improving the skill and knowledge of entrepreneurs through various training and classroom programs is called what? That is called entrepreneurship development. We call that is entrepreneurship development. Now, next question is here, what is entrepreneurship and explain any two roles of entrepreneurship. Clear, this is session number 2. Now, your unit number 4 over. In this unit, only 2 sessions are here. Now, I'm going to share notes and soul self-assessment of both unit with you.